Assalamu alaikum, Hareem. Thank you so much for joining the session. Thank you. Thank you so much. How are you, It's Amel? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out your time. So basically, the main idea of having you guys, like those Gen Z's Hmm. people, to that this session is to get as much knowledge from them, also to understand the idea कि अब किस तरीके की चीजें वो फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, and vice versa. Hmm. So I do have a lot of things to discuss, and we do have few things to discuss in the session. But before that, I'll be happy if you can share yourself. क्या चल रहा है, how's life, how's everything, and then we'll start the session. Okay. So life so far has been really good. बहुत एक new experience रहा है क्योंकि suddenly आप university में एक बहुत pampered environment में होते हो. You have everything laid out for you. We have prompts for you. And now I have stepped into my work life. I recently graduated in June 2025. उसके बाद मेरे तकरीबन एक महीने में ही I got my first job. So it started out really quickly and I had to step into this very different environment जिसके अंदर आपको अपनी scheduling खुद करनी पड़ती है. You have to kind of find out tasks for you. Like I found out that work life is so different from university life. University life में आपको पता होता है the next step you have to take. Here everything is really uncertain. You literally are the pioneer and driver for your own journey. Like इसके अंदर आप ऑफिस में जाते हो आपको आपको ये नहीं पता कि अभी आपके दिन के अंदर आपको क्या क्या टास्क करने होंगे. आप खुद अपने लिए बनाते हो. अच्छा मेरे गोल्स ये हैं, मेरे KPIs ये हैं. लिटरली साल के एंड में भी हम KPIs खुद बना रहे होते हैं. तो बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस इंडिपेंडेंस की जर्नी हो रही है. इट्स अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग बट इट्स आल्सो समथिंग दैट इज हेल्पिंग मी ग्रो इनटू अ मोर सेल्फ सफिशिएंट पर्सन. वो कहते हैं ना कि आपका फ्रंटल लोब 25 साल की उम्र तक बनता है. तो अब ऐसा लग रहा है कि वो फ्रंटल लोब जब बन जाता है इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है. इट लिटरली मीन्स दैट यू आर नाउ इंडिपेंडेंट एंड उस इंडिपेंडेंसी की सफर एक तरीके से उसकी शुरुआत हो चुकी है. सो ऑफ कोर्स लाइफ बहुत अच्छी जा रही है. इस हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड इट्स अ गुड फेज ऑफ लाइफ. इट्स नॉट बैड. इट्स समथिंग इट्स वेरी चैलेंजिंग बट इट्स अ गुड फेज. सो Good enough. I दैट्स think अबाउट I think you are one of the very positive Gen Zs that I know, who recently graduated, and rather than blaming things like blaming things on government, blaming things on education, it's good to have people like you who have that idea. Okay, fine, this is just in a start. Let's experience that as well. Or वो फिर बुरा हो या अच्छा. So before we move to the main detail of it, let's start from the very basics. क्योंकि one of the very core decision in your life is basically bachelors, and people usually don't see that. और अगर वो देखते भी हैं तो पाकिस्तान में importance of bachelors is basically on behalf of कि ठीक है यार मेरे चाचा मामा के बेटे ने करा है तो मैं भी ये कर लेती हूँ, and vice versa. ठीक है. But your generation, mashallah, your generation is getting much more uh, outspoken, and also they wanted to understand, okay fine, मैं इस चीज को करना चाहती हूँ and I wanted to do that. Okay, बहुत टाइम पहले लोग ये कहते थे कि भाई ठीक है ये नहीं तो कोई और चीज कर लेते हैं, इसमें एडमिशन नहीं होता तो ये चीज कर लेते हैं. ठीक है. बिल्कुल. So let's discuss about, so you graduated from Habib University in communication and design, and I'm assuming communication and design जब कोई इतनी specific degree कर रहा होता है और हबीब जैसी यूनिवर्सिटी को पिक कर रहा होता है, so it's a very calculated decision. ऐसा नहीं होता कि यार ठीक है कुछ नहीं मिला तो मैंने कर लिया, because a lot of time there are fields जो आपने देखी होंगी अपनी फैमिली के अंदर भी कि भाई ठीक है डॉक्टर नहीं बन सके तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल कर लिया, वाइस वर्सा. बट आई एम अज्यूमिंग कि कम्युनिकेशन डिजाइन ऐसी डिग्री नहीं होगी जो आपने एक दिन सो के उठी और आपने सोचा कि ठीक है लेट्स डू अप कम्युनिकेशन बिल्कुल. डिजाइन. ठीक है. सो टेल मी हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड व्हाई डू यू चूज हबीब यूनिवर्सिटी, बिकॉज one is not that cheap university, number one. Number second, communication design, we need to understand कि okay fine communication design कह रहा हूँ क्योंकि फिर आपको आप उस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं जहाँ पे डिजाइन सो कॉल्ड आज भी वाइट कॉलर जॉब नहीं कंसिडर की जाती. ठीक है. यस, बिल्कुल. डिजाइन के बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके अंदर UI UX है, प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइपिंग है, इंटरेक्टिव है, और बहुत सारी और जी. चीज आ जाती हैं. बट टू अंडरस्टैंड एक ओवरऑल डिजाइन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी भी ग्राफिक डिजाइन ही सब चीजें समझी जाती हैं. अगर आप किसी को भी बताते हैं तो यू डोंट से इट एज अ वाइट कॉलर जॉब अंटिल अनलेस कि अगर आप BBA करती हो और आप किसी बैंक में नौकरी कर रही सही होती बात तो है. इट्स कंसिडर जी एज अ बिल्कुल. वाइट कॉलर जॉब. ठीक है. सो व्हाई डू यू थिंक बैचलर्स इन आर्ट्स कम्युनिकेशन डिजाइन पिक करने की क्या वजह थी? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? हबीब का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? डू यू थिंक यूनिवर्सिटी बिल्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू रिसेंटली गॉट ग्रेजुएटेड? ठीक है.
सो फॉर यू एवरीथिंग इज न्यू, ठीक है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो कहता है यार मार्केट ऐसी है, मार्केट वैसी है, तो दे आर नॉट इन टू दैट। आई थिंक आपके बिहाफ से मैं ये चीज़ देखना चाहूंगा कि आपको कैसा लगता है कि रियलिटी में क्या क्या चीज़ें उस तरीके से, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एज फार एज योर बैचलर्स लाइफ, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस व्हेन यू चूजिंग दिस डिग्री, एंड Yeah. हाउ इज द ओवरऑल लाइफ गोइंग? So sure. तो हबीब, कमिंग टू हबीब वॉज अ वेरी, समझे, एक गिफ्ट था मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इनिशियली आई हैड दिस कॉन्सेप्ट, लाइक आई शिफ्टेड फील्ड्स अ लॉट। मैंने बायो भी पढ़ी हुई है। जब मैं शुरू में थी, मैं बायो में थी इन माई मैट्रिक, जो मेरा ओ लेवल्स था, तो मैंने ओ लेवल्स से शिफ्ट ओवर कर दिया था टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना ओ लेवल्स मैंने छोड़ दिया था बीच में, बिकॉज आई हैड दिस थॉट कि मुझे एनईटी में जाना है, और उस वक्त ये था कि अगर आप ना मैट्रिक या फिर इंटर करते हो तो आपको एडमिशन जल्दी मिल जाता है एनईटी के अंदर। तो मैं एनईटी में जाने के लिए मैंने ओ लेवल से मैट्रिक में शिफ्ट कर दिया था। मैट्रिक में शिफ्ट मैंने किया, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, बिकॉज ओ बायो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। आई डिड नॉट वांट, माय मदर इज अ डॉक्टर, और मैंने देख लिया था कि भाई बायो मुझसे नहीं होगा, जो उनका एक्सपीरियंस है मुझे वैसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। तो वो करते करते जब मैंने साइंस पढ़ा, तो मुझे ये भी फिर लगा कि साइंस इज ऑल्सो समथिंग नॉट फॉर मी। आई हैड सम बुक्स इन माय होम जो मार्केटिंग की थी, मेरे अब्बू ने एमबीए किया हुआ है। तो जब वो मैंने पढ़ी ना, तो मुझे लगा कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। एंड यूजुअली मैं एड्स वगैरह देखती थी, किस तरीके से मार्केट किया जाता है, प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है, यूजर के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है ऑडियंस की, तो वो समथिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब यूनिवर्सिटी के लिए आई गो फॉर, आई शिफ्टेड टू कॉमर्स इन माई इंटरमीडिएट, और फिर वहां से मैं सोचा कि मुझे मार्केटिंग की फील्ड में जाना है। अब मार्केटिंग की फील्ड में जाने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। एक बीबीए होता है आपके पास जो होता है बीकॉम भी हो जाता है आपके पास। एक फिर नई फील्ड निकली थी सीएनडी की, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन की। हबीब के रिप्रेजेंटेटिव मेरे कॉलेज में आए थे, एंड आई रियली लाइक द प्रोग्राम दे वर टेलिंग अबाउट। और उसमें सबसे बड़ी बात है एचयू टॉप्स की। HU Tops is a 100% scholarship program जो हबीब ऑफर करती है। I went for an MUN in Habib one time. I used to do MUNs a lot. और मुझे हबीब का जो कल्चर था एक तरीके से, लाइक आप उस यूनिवर्सिटी में जाते हो एंड यू फील लाइक यू हैव एंटर्ड लिटरली अ वेरी न्यू वर्ल्ड। वहाँ पे आपको चीखों पुकार नहीं दिखती, वहाँ पे आपको यू डोंट फाइंड पीपल स्टेरिंग एट यू, यू डोंट फाइंड समवन क्रिटिसाइजिंग एनीवन एल्स। जो एक हबीब का जो एक कल्चर होता है ना, जिसके अंदर इंक्लूसिविटी आ जाती है, जिसके अंदर रिस्पेक्ट आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है, वो वाइब आपको महसूस होती है। तो 2017 में आई वेंट टू हबीब and I was so much drawn to the university that when I started applying for university, I was like, Habib is going to be one of the choices. So that, and I'm someone who goes into any venture with a lot of research. मैं ऐसे नहीं उठ के चली गई थी हबीब में कि मुझे यहाँ जाना है। मैंने लिटरली एलुमनाइज को कांटेक्ट किया था जिनको मैं जानती थी, एंड मैंने एवेल्युएट किया था कि मार्केटिंग की फील्ड में जाने के लिए क्या क्या रास्ते बन सकते हैं। बीबीए और सीएनडी के बीच में डिफरेंस ये था कि ऑल्दो बीबीए एक बहुत ही मशहूर फील्ड है, आई एम अ लॉन्ग साइटेड पर्सन। मैं इंस्टेंट विंस के लिए, इंस्टेंट सक्सेस के लिए नहीं अपने को डिसीजंस देती। मेरे डिसीजंस लॉन्ग टर्म बेस्ड होते हैं। बीबीए आपको इंस्टेंटली जॉब दे देगा, बट बीबीए की इनंडेशन है इत हर लिटरली मेरे, मैं तो एक जुमला बोलती थी, और जो और भी लोग बोलते हैं कि पत्थर उठाओ तो नीचे चार आपको बीबीए के लोग मिल जाते हैं। सेम इतना गोज फॉर ज्यादा। डिजाइन, सेम गोज फॉर डिजाइन। द मेन आइडिया ऑफ के अभी तक आपने जो भी चीजें बताई, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव के आई थिंक यू आर लाइक 5% ऑफ द पॉपुलेशन हु थिंक्स कि ठीक है, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू रिसर्च अबाउट इट, ठीक है। बट अगर देखा जाए थ्रू आउट योर ओवरऑल करियर पाथवे, देयर इज नो वन इन योर ओवरऑल एंटायर लाइफ जो जो कि आपको गाइड कर सके कि दिस इज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू, दैट यू कैन डू इट। That is the main idea of understanding, because yes, you are very good, you know your idea, okay fine, मैं जो भी चीज करूंगी मैं उस हिसाब से करूंगी। दैट इज द मेन आइडिया। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अगर मेरे माँ बाप ने ये चीज करी है तो दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड ऑन मी। योर मदर इज अ डॉक्टर, योर फादर इज एन एमबीए, बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि अगर अम्मा और अब्बा किसी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोप में है तो आप भी वही चीज करो। नंबर वन। नंबर सेकेंड, व्हाट आई सी इज के जैसा आप कह रहे हो ना कि ये बड़ी अच्छी चीज है, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपके पास उस एज ग्रुप में जब आप अपने ए लेवल्स में या अपने इंटरमीडिएट में आप ये सारी चीजें सोच के कर रहे हो। 90% of the people don't have
दैट कैलिबर टू अंडरस्टैंड कि भाई इधर मैं किस तरीके से करूंगी या करूंगा, ठीक है। एंड लेट इफ आई डिस्कस अबाउट द करूंगी पार्ट, द लेडीज पार्ट, तो लड़कियों को इतना तो एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता, ठीक है। यू आर वेरी प्रिविलेज, नंबर वन, इट्स गुड। नंबर Yeah, I सेकेंड, completely एंड agree with that. सेकेंडली यू आर वेरी गुड टू, कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज करूंगी तो ऐसे ही कर लूंगी, ठीक है। अब मैं Okay. रिसर्च करूंगी, मैं उन चीजों में करूंगी, जैसा भी आपने बात बोली कि Hmm. बीबीए और एनी फील्ड जो कि बहुत कॉमन है, आई डोंट, यू डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। बट पाकिस्तान में Hmm. मसला यही है कि पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि ओके फाइन, इफ समवन डन समथिंग, अगर आप भी वो चीज फॉलो करोगे ना तो उसी तरीके से चलेगी, Hmm. ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस कि इट्स अ वेरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, क्योंकि जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी का बात कर रहे होते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी बर्गर है और इसके पास तो बहुत पैसा है, एंड नहीं नहीं। दैट्स द मेंटालिटी विद व्हाट पीपल यूजुअली हैव पाकिस्तान के अंदर। हम क्राइटेरिया इस तरीके से बना रहे होते हैं या परसेप्शन इस तरीके से बना रहे होते हैं, ओके फाइन ये टीयर वन यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं तो आई थिंक ये उस कैटेगरी में आते हैं, ये टीयर टू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, यू गॉट टू हबीब with a lot of research, ठीक है। Hmm. योर पॉइंट इज वेरी राइट, क्योंकि जब आप टॉप टियर यूनिवर्सिटी में होते हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जिसमें कल्चर आती है, जिसमें आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट आता है, क्योंकि आपने 4 साल सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने वहां बिल्कुल। जाना है, आपने बहुत बहुत सारे कुछ लोगों से करना होता सीखना है। है। एंड इट्स मोर लाइकली यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट लाइक 80-90% ऑफ योर लाइफ फॉर दोज 4 years इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। You graduated in 2025 very recently, ठीक है। Now I wanted to know कि कम्युनिकेशन डिजाइन आपने पिक करी, क्योंकि मैं उस वाली चीज पर अभी बात नहीं करते कि आपने क्यों पिक करी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने अपनी पूरी रिसर्च करी होगी, लोगों ने आपको हेल्प आउट करा होगा। हबीब वाज अ वेरी गुड थिंग, फुल 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 स्कॉलरशिप पर होगी, तो वो सब प्लस चेक पॉइंट चेक्स हो रहे थे। Hmm. लेट्स डिस्कस अबाउट, यू ग्रेजुएटेड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक कि वो एक प्रेशर रहता है आप पे जब आप हबीब जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट है कि अरे हबीब से ग्रेजुएट हुआ है तो सर्टेन लोग उसको जल्दी हायर कर लेते हैं, ठीक है। या आपको ऐसा लगा कि हबीब ने मुझे इस चीज के अंदर ये प्लस पॉइंट दिए जिसकी वजह से मैं जॉब मुझे जल्दी मिल रही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या किस तरीके से जी, होता है ये। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हबीब का एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हबीब हमें ना ऐसा लर्नर बनाता है। अभी मैं आपको बताऊँ, जब आप मार्केट में जाते हैं ना, आपको बहुत सालों से 25-25 साल से काम करते हुए लोग मिलते हैं, जो हम्म, कहते हैं कि हमने 25 साल पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो हमने सीखा था ना, आज तक वही सही है और हम्म, उसमें चेंजेस अगर आती हैं, तो बहुत मुश्किल से आती हैं। हम्म, अगर हम लेट्स से जो बहुत कंपनीज जेन ज़ी को हायर कर रही है कि चेंज लेके हम्म, आएंगी, न्यू आइडियाज लाएंगे, इनोवेशंस लाएंगे, हम्म, बट उसको पास ऑन होने के लिए एक बहुत बड़ी हायर आईटी है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तब तक वो आइडिया पुराना हो जाता है या वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि इतनी स्ट्रैटेजी होती है। हबीब ने जो हमें सिखाया है ना, वो ये सिखाया है कि जितना भी आप सीख लो ना, आपकी नॉलेज कभी पूरी नहीं हो सकती। और हम्म, जितना भी आप सीख लो अपनी फील्ड के अंदर, देयर इज समथिंग इन समवन एल्स फील्ड दैट यू नीड टू लर्न दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो हम्म, इसी तरीके से हबीब में हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि हम अपनी डिग्री के अलावा और डिग्री से भी पढ़ सकते हैं। आई कमिंग फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड, बीए की डिग्री में मैंने कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी लिए हैं, हम्म, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्सेज भी लिए हैं, फिलोसफी के कोर्सेज लिए हैं, थिएटर के कोर्सेज लिए हैं, उर्दू लिटरेचर के कोर्सेज लिए हैं। हबीब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इवन अपनी फील्ड में भी इतनी सारी चीज़ें वो लोग पढ़ाते हैं। हमें इसमें 3D एनिमेशन पढ़ाई है, हमें इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स पढ़ाई है, हमें इसके अंदर आर्ट हिस्ट्री पढ़ाई है, यूएक्स यूआई पढ़ाया है, ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ाया है, इलस्ट्रेशन पढ़ाई है। तो हम्म, हबीब की डिग्री का फ़ायदा ये है कि वो हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। फिर हबीब हम्म, has taught us two main ways of thinking, that is design thinking and critical thinking. We, हम्म, as someone who came to Habib from with a thinking के जो मुझे सच पता है ना, बस वही सच है। Like I was someone जो सोचता था कि अ, ये अगर कुछ बुरा हो रहा है ना, तो उसमें जो मुझे वन साइड दिखती है ना कि जो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये बंदा गलत कर रहा है, तो आई एम हम्म, नॉट, मैं ऐसी थी नहीं कि मैं रिसर्च करूँ कि अच्छा कुछ इसकी बैक स्टोरी भी हो सकती है, बी दिस इज अ रिएक्शन टू समथिंग दैट हैपेंड वेरी रॉन्ग टू देम। नो, आई वाज समवन, व्हाट आई सी इज द ट्रूथ। इवन विद पॉलिटिकल जितने भी आपके जो हमें सिखाया जाता है, पॉलिटिकल स्टांसेस, पॉलिटिकल हिस्ट्री सिखाई जाती है, हमें सिखाया है कि हिस्ट्री हमेशा
विनर लिखता है, हिस्ट्री इज रिटन हम्म बाय द विक्टोरियस। सो वी वर टॉट टू चैलेंज स्टेटस कोस एंड ट्रेडिशनल आइडियाज, अपनी हम्म खुद की सोच पैदा करने के लिए। ठीक हम्म है, इसके अलावा हमें सिखाया था कि डिजाइन थिंकिंग का पूरा प्रोसेस हमें सिखाया था कि किस तरीके से आप एक छोटे से प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ लेके जा सकते हो, हम्म इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ वेरी बिग सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपने पहले राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि इशू है क्या। जब हम्म आपको इशू पता चलेगा तभी जाके आप सोल्यूशन बनाओगे, राइट। तो ये जो डिजाइन थिंकिंग की पूरी जर्नी है, क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी है ना, ये आपको एक बहुत बड़े ग्रे एरिया में छोड़ देती है, जिसकी वजह से आप ना कंप्लीटली सच का साथ दे सकते हो ना बुराई का साथ दे सकते हो, बिकॉज यू हैव टू इवेल्युएट अलॉट। फिर जब आप हम्म मार्केट में आते हो ना, तो लोग आपको ये समझते हैं कि बिकॉज यू हैव बीन टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो हमारे हबीब हैज अ वेरी बिग नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हबीब के साथ काम कर रही होती हैं। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ कि पीपल थिंक दैट वी आर सो मच गुड एट मल्टीटास्किंग कि हमारे ऊपर एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि हम तो सब हैंडल कर लेंगे, हमें हम्म हमें सब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर चीज की। और डिजाइन थिंकिंग को एक हम वी वर टॉट द डिजाइन थिंकिंग इज अ डिफॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग, लाइक इट इज नॉट अ टूल, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क कि आप उसको पिक एंड चूज करके अप्लाई कर सकते हो। हम्म हमें यहाँ पे बोला जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को प्लीज डिजाइन थिंकिंग के थ्रू सॉल्व कर लें, बट दैट इज हम्म नॉट समथिंग दैट वी कैन डू। डिजाइन थिंकिंग को पिक एंड चूज नहीं, इस प्रॉब्लम डिजाइन थिंकिंग एक पूरी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होती है। आप आपका एचआर हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर आपकी जो सोचने का तरीका होता है ना, वो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड करना पड़ता है। अब हम्म होता यूं है कि हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि भाई इसको तो डिजाइन थिंकिंग आती है कि इसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेगा, एंड हम्म पीपल वांट रियली क्विक सॉल्यूशंस। हम्म डिजाइन थिंकिंग इज अ वेरी स्लो आइटरेटिव प्रोसेस, जिसमें अगर आपको एक आपको एक्सपीरियंस बनाने में 2 साल लगते हैं, हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम 2 महीने में कर लें। हम वैसे ट्रेन नहीं होते, हमारा पूरी एक जर्नी होती है जिसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है, कभी हम्म आगे पीछे जाना पड़ता है, यहाँ पे परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। that तो is that अपनी is that is sorry to cut you off, but that is the reality. ठीक है, for example, हम्म, um, university teach you a lot of things, but market don't work on those standards. ठीक है, if you research in universities in like a 4 month course कि आप उसके final में देंगे, market इस तरीके से काम नहीं करती. And I totally get the idea कि when you are working in a multidisciplinary university जहाँ पे आप सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट कि आई पर्सनली बिलीव कि जो आपके आर्ट्स स्कूल्स होते हैं उसके अंदर फायदा ये होता है कि आप 4 साल एक ही चीज पढ़ते हैं. ठीक है, सो इट्स बिल्कुल अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, वेदर यू वांट टू बिकम अ मास्टर ऑफ वन. ठीक है, एंड आई सही टोटली बात एग्री विद योर पॉइंट कि दिस इज व्हाई आई रियली वांटेड टू डिस्कस, बिकॉज लोगों को, कंपनीज को ऐसा लगता है कि यार दे आर फ्रॉम big universities are teaching them a lot, so they somehow think और realize कि नहीं यार हम इन पे ओवर बर्डन ना भी करें, अगर उनको कोई भी चीज देंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे. दिस इज वेयर इट कम्स बिल्कुल यही बात। दिस इज वेयर इट कम्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अलग तरीके से चलती है, क्योंकि 4 साल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जरूरी ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी के एंड में आते आते जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उनसे आपको बहुत सारी रीजनेबल रिसर्च मिलती है अपनी, कि भाई ठीक है बिल्कुल इस तरीके से काम करती है कंपनी, कंपनी इस तरीके से अप्रोच करती है. बिकॉज यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग हबीब इज गुड और बैड और लम्स इज गुड और बैड और आईवीएस इज गुड और बैड, टू अंडरस्टैंड अगर करियर काउंसलिंग आपकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी पहले हो, सारी जनरेशन की, जिनको ये हम्म बताया जाए कि देखो वो आपको जो चीज सिखा रहे हैं आपने वो चीज लेके इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करनी है रियल लाइफ में. ठीक है, आई एम हम्म अज्यूमिंग कि अगर वो चीज इम्प्लीमेंटेशन या रियलिटी ऑफ लाइफ में सीखता रहे बंदा, तो वो ग्रेजुएशन में ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ठीक है, आप एक बबल में ही होते हो. सही है, उस सही बब, बात है, वो बबल बस यही तब बात होता है, वो बबल बस तब होता है जब आप रियलिटी में जाते हैं. ठीक है, सही बात सो अब होता ये क्या है, मैं ये नहीं कहता कि जेनजीज आर डिफरेंट और दे आर रॉन्ग और राइट. इट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेनजीज को मिलीनियल्स ही पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो मिलीनियल्स को चाहिए कि वो उनको उस तरीके से ट्रेन कर सकें रियलिटी में,
यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो हम्म, उनको उस तरीके से ट्रेन कर सकें. यस, studying your bachelor's from a big university give you a relatable approach कि आप सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, बट हम्म, इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट. ठीक है. अच्छा चलें, अब लेट्स डिस्कस अबाउट कि थोड़ा सा मुझे बताओ कि माशाल्लाह से यू हैव डन अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप. ठीक है, आप काफी इन रहे, आपने हर चीज करी, यू हैव बीन इनटू मंथ्स, तो यू मोर लाइकली अ एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको पता है कि यार मैं किस तरीके से लोगों से मिलूंगी, किस तरीके से एक्सप्रेस करूंगी. ठीक है, विल बी डिस्कसिंग दैट पॉइंट एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन डिजाइन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि उस डिग्री का जो पहला पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन एंड देन डिजाइन. ठीक है, तो वो हम बात करेंगे, बट टेल मी what was your experience when you got your first job. ठीक है, इधर इधर हम्म, इट कैन बी इंटर्नशिप, तो मैं वो जानना चाहता हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि उसके बाद तो आप इंडस्ट्री को समझ जाते हैं कि ठीक है, अच्छा यार इस तरीके से काम होता है. देन यू गो वन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ. तो ये बट राइट नाउ 2025 में ग्रेजुएट हुए लड़की को जो नौकरी हम्म, मिली है, हाउ वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, किस तरीके से मिली, आपको क्या लगता है कि आफ्टर 4 5 मंथ्स मुझे ना ये चीजें बेहतर करनी चाहिए ताकि मैं अगली मर्तबा इस चीजों को, क्योंकि यू आर ऑल्सो री एवेल्युएटिंग योर सेल्फ एवरी डे. ओके फाइन, बिल्कुल आप एक इंटरव्यू सही। देते हैं, आप एक इंटर्नशिप करते हैं या एक जगह पे जाते हैं, आपको लगता है यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए थी. क्योंकि आप कितने भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख लें, आप कितने भी सही बात है। मेंटोरशिप सेशंस ले लें, when you are one on one with in an interview, ठीक है, इट्स ओनली हैपन कि आप जो चीज भी पढ़ के आए वो मैटर नहीं करती, वो जो 10 15 20 मिनट में आपको सवालों का जवाब देना है, उस बंदे ने या उस बंदी ने उस पे आपका फैसला करना है कि आर यू अ गुड फिट और नॉट. हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव टू द मार्केट. श्योर। अच्छा, सरप्राइजिंगली मेरा पहला एक्सपीरियंस डिज़ाइन की किसी इंटर्नशिप में नहीं था। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन इंटर्न इन ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट, जो कि एक हम्म. एनजीओ है जिनकी स्कूल्स हैं कराची के हम्म. रिमोट एरियाज के हैं, बल्दिया हम्म. गडाफ वगैरह के अंदर। हम्म. तो मैंने उनका विंटर इंटर्नशिप कैंप ज्वाइन किया था हम्म. एंड इट वाज आई थिंक अ 1 मंथ कैंप, जिसके अंदर हम्म. एक हफ्ता हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें बूट कैंप के अंदर वी हैड टू लर्न हाउ टू क्रिएट कोर्सेज एंड टीच द स्टूडेंट्स फॉर अ 4 वीक, आई थिंक अ वीक और 2 वीक इंटर्नशिप। वो उनका एक विंटर कैंप है जिसके अंदर आपको उनको 4 मॉड्यूल्स पढ़ाने होते हैं। इट इज सोशल हम्म. लीडरशिप, हम्म. सोशल लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई इसके अंदर, इसके हम्म. अंदर डिजिटल लिटरेसी हो गई और करियर काउंसलिंग हो गई। सो ठीक है. सरप्राइजिंगली एक और चीज़ बताऊँ ना, आई एम अ ह्यूज ह्यूज इंट्रोवर्ट। मैं हम्म. बिल्कुल एक्सट्रोवर्टेड नहीं हूँ। और हम्म. ये मुझे पता ही मेरी डिग्री से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बट हम्म. आई लर्न टू नेविगेट माई इंट्रोवर्टेडनेस। हम्म. तो मुझे मुझे पता है कि कहाँ मुझे अपने इंट्रोवर्ट सेल्फ को आगे आने देना है, कहाँ हम्म. मुझे अपने आप को चैलेंज करना है। इसकी सबसे बड़ी हेल्प ही मुझे अपनी इंटर्नशिप में मिली थी। मैं अपने आप को एक टीचर कभी भी काउंट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और हम्म. मेरे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरे अल्फाजों पे मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती लोगों को। आई हम्म. ट्राई टीचिंग माई सिबलिंग्स, बट उन 2 हफ्तों के अंदर मैंने बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ लोग थे, कुछ आईबीए से थे, कुछ पीएफ कीट के थे, उनके साथ बूट कैंप अटेंड किया था। एंड हम लोग 4 लोग थे। हम हम्म. अकेले वैन के अंदर बल्दिया जाते थे, वहाँ पे उनकी हम्म. हिलाल पब्लिक स्कूल है जहाँ पे हम्म. 47 गर्ल्स थी ऑफ 8 9 एंड 10 क्लास। मैंने उनको 2 हफ्ते पढ़ाया था विंटर इंटर्नशिप कैंप के अंदर। हम्म. उधर लाइट नहीं थी, हम्म. उधर कोई लैपटॉप वगैरह यूज नहीं कर सकते थे। हम्म. उनके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर्स भी नहीं थे। एक लैपटॉप मैं अपना लाती थी, उनके पास कोई ब्लूटूथ स्पीकर था या मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर लाती थी। एंड हम्म. मेरे साथ एक और लड़की होती थी। हम लोगों ने लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई डिजाइन द होल कोर्स एंड आई टॉट देम इन अ लैंग्वेज दैट दे वुड अंडरस्टैंड। हम्म. बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हर इंसान को समझ नहीं आते हैं। सोशल हम्म. लीडरशिप क्या होती है, कि सोशल लीडरशिप के अंदर आपको सिर्फ अपने लिए ही स्टेप नहीं लेना होता, आपको कलेक्टिव वेलबींग का सोचना पड़ता है। यही चीज हम्म. मुझे हबीब ने सिखाई थी। वट एवर यू डू इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग यू, बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह रिपल होके वो जा रहा होता है। तो हम्म. ये चीज उनको सिखानी थी। फिर अपने ही लैपटॉप के ऊपर उनको कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये बेसिक सॉफ्टवेयर, गूगल, उनको वो ऐसे लोग हैं कि जो बच्चियां थी जिनको गूगल सर्च तक करने नहीं आता था। तो हम्म.
बहुत ही एक कहते हैं न्यू चीज उनको सिखानी थी, एंड इट हम्म, टर्न्ड आउट इन अ वे कि आई वाज वन ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट टीचर्स। लाइक हम्म, उन्होंने मुझे अभी तक मैं सोचती हूँ ना तो आई फील गेट सो इमोशनल दैट दे गेव मी सो मेनी गिफ्ट्स मेड फ्रॉम देयर ओन हैंड्स। लाइक हम्म, दे आई रिमेम्बर दे वर ऑल क्राइंग दैट आई वाज लीविंग। इतना उनका मेरे साथ बॉन्ड क्रिएट हो गया था। और वो एक इंटर्नशिप थी जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी एक तरीके से, हम्म। क्योंकि मैं मेरे अपने कंफर्ट जोन म- से मेरा एक समझे 100%। हाँ बोले। मेरा एक सवाल है इस पे, ठीक है? हम्म। आई एग्री, योर इंटर्नशिप इज गुड, योर इनिशिएट इज गुड, आपने उनसे बहुत सारी चीज सीखी। हम्म। बट डू यू थिंक डूइंग इंटर्नशिप नॉट रेलिवेंट टू द फील्ड मेक सेंस? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों का। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हमने एक डिग्री कर रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेबल चीजें करेंगे, ठीक है? बिल्कुल मैं वही। आप कभी कभार ये चीज भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपको एक ही चीज से मिले, ठीक है? बिल्कुल सही बात। क्योंकि डिजाइन इटसेल्फ, अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करता हूँ, डिजाइन इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? अब वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो टेंजेबल तरीके से भी कर सकते हैं, वो इंटेंजेबल तरीके से भी कर सकते हैं। समटाइम्स a product can be your lifesaver. Sometimes a design can be a हम्म। lifesaver. But do you think कि आपको तो चले, आपको एक्सपीरियंस सही रहा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बट डू यू थिंक स्टिक टू द रोल, स्टिक टू द इंटर्नशिप जो आपकी डिग्री से अलाइन करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या जरूरी नहीं है क्योंकि आप शुरू शुरू में और लर्निंग फेज में तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें? व्हाट वाज योर थॉट ऑन इट? पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि आपकी डिग्री में जो आप सीख रहे होते हो ना, जो हार्ड स्किल्स होती हैं आपकी, हम्म, एज अ कोडर आप कोडिंग सीख रहे होते हो, आप हम्म, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे होते हो, एज अ डिजाइनर आप यूएक्स वाई सीख रहे होते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, दैट्स हम्म, जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल 4 ईयर जर्नी ऑफ बैचलर्स, या जो भी आप डिग्री ले रहे हो, एसोसिएट्स की ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, वो आपकी एक जर्नी का एक बहुत माइन्यूट पार्ट है। हम्म, आप हार्ड स्किल तो ले रहे होते हो, बट उनको किन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हम्म, आपकी डिग्री से रिलेटेड इंटर्नशिप होना दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल इन माय ओपिनियन, क्योंकि एट द एंड आप जिधर भी काम कर रहे होते हो ना, आप उधर ऐसी स्किल सीख रहे होते हो जो आपको आगे जाके आपके आगे जॉब में काम आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतने लोगों को देखा है, रेयरली लाइक अगर मैं बात करूँ ना आर्ट्स की फील्ड में, तो सिर्फ मैंने फ्रीलांसर्स को ही देखा है जो एग्जैक्टली वो काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। जितने लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं ना, कॉर्पोरेट इज मोर ऑन द साइड ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग, मोर ऑन द साइड ऑफ मैनेजिंग पीपल, स्टेक हम्म, होल्डर मैनेजमेंट, एजेंसी मैनेजमेंट। यस, उसके अंदर आपकी स्पेसिफिक कोडिंग का काम आ जाता है, उसमें आपके स्पेसिफिक जो है वो डिजाइनिंग का काम आ जाता है, या अगर आप कंटेंट राइटर तो कंटेंट राइटिंग का काम आ जाता है। मगर दैट इज वन पार्ट ऑफ द जॉब। आधे से ज्यादा टाइम आपका पीपल मैनेजमेंट पे जाता है, लोगों से काम करवाना, लोगों को हम्म, अपनी बात मनवाना। तो ये सब चीजें आप डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल करके सीख सकते हो। और जब हम किसी जगह पे हायर होते हैं ना, तो हमारी जेडी के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है कि आपको ये जॉब, ये टास्क आपके। बट हम्म, आपका रोल कभी भी जेडी से रिलेटेड बाउंड नहीं होता। इट इज ऑलवेज व्हेन यू गो आउट ऑफ दैट जेडी, गो आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, तभी तो आप इस काबिल बनते हो कि आप क्लेम कर सको कि अच्छा, नाउ आई हैव डन these tasks, I have taken up these responsibilities, now I am eligible for a better role, for a better हम्म, title. That is only how you grow yourself पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आप अपने करियर में आगे बढ़ते हो। और इंटर्नशिप इसलिए बंद नहीं की जाती मेरे हिसाब से कि आपको ये बताना है कि मैंने डिजाइन किया, मैंने कुछ किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप मैंने एक यूएक्स यूआई की भी इंटर्नशिप की हुई है, एक स्टार्टअप में की थी, हम्म, जो सोशल स्टार्टअप था। बट आई डोंट थिंक सो व्हाट आई मेक एक्चुअली वेंट, मैं बहुत रियलिस्टिकली ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, आई डोंट हम्म, थिंक सो व्हाट आई मेड एक्चुअली वेंट इनटू यू नो यूज करने के लिए किया होगा, या उन्होंने स्टार्टिंग आइडिएशन के लिए, मैंने मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। हम्म, बट मुझे उससे सीखने को या क्या मिला, मुझे सीखने को मिला कि जब एक कंपनी आपको ब्रीफ देती है तो उस ब्रीफ के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या बना के देना है, हम्म, कितना बना के देना है, आपको उनके फीडबैक को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। तो starting from me, for me, starting from a
इंटर्नशिप दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फील्ड। पहले मैं भी बहुत स्केप्टिकल थी, मैं यही सोचती थी कि सब लोग डिजाइन की इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं ये वाली कर रही हूँ। मगर इससे मुझे क्या सीखने को मिला, पहले तो मुझे सीखने को मिला कि आई डोंट नीड टू बी स्केर्ड ऑफ न्यू चैलेंजेस, ऑफ टेकिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। चूंकि मैं ये कर पाई थी, इसी वजह से व्हेन आई गॉट डिजाइन इंटर्नशिप इन नाउ पीडीपी, उधर उनका एक प्रोजेक्ट है जिसको रिवाइव करना था बेसिकली। तो हम्म आई वाज अ सिंगल पर्सन ओवर देयर जो बहुत सारे काम कर रहे थे। प्रोडक्ट हम्म फोटोग्राफी हो गई। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऑल्दो मेरी डिग्री का पार्ट है, लेकिन कभी मुझे बहुत ही इंटेंस सिखाई नहीं गई थी वो ना। और ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती थी, मोशन ग्राफिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। मुझे हम्म ये अंदाजा हो गया कि अच्छा, मैंने अपनी बाउंड्री टेस्ट की कि मैं न्यू रोल्स ले सकती हूँ, मैं हम्म चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हूँ, विच आई वाज वेरी स्केप्टिकल ऑफ। उसके ही बाद मैंने अपने डिजाइन की जो इंटर्नशिप थी, जो स्पेसिफिक डिग्री से रिलेटेड थी, उसमें अप्लाई किया मैंने, एंड आई एक्चुअली गॉट सक्सेसफुल इन दैट। तो हम्म। कुछ भी आप कहीं भी जाओ, आपके 4 साल यूनिवर्सिटी के, आई थिंक सो आई एम मोर अबाउट लर्निंग इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ करियर पाथ। आपको honestly, when you graduate, you still end up doing things that you never thought you would do till the end of university. आपको जॉब, आप क्या चाहते हो, आपको कहाँ जॉब मिल जाती है। I have seen people in my degree who graduated with filmmaking. They are literally doing design work for ad agencies, क्योंकि हमारी डिग्री ने हमें वो भी सिखाया हुआ है। तो in नहीं case वो you तो did not उसमें end up उसमें उसमें दो तीन चीजें, ठीक है। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस के when you are in your internship phase, so it's about learning, or learning it's always not only relevant to the field or not only relevant to the or to the JD of yourself, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल। घोड़े की नाल लगा के सिर्फ वही वाला काम कर रहे हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम्म। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट बिल्कुल। कर रहे हैं थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, दैट मैटर्स, ठीक है। एंड यू आर राइट कि ऐसा नहीं है कि यू ओनली डिड दैट, ठीक है। यू हैव डन मल्टीपल स्मॉल इंटर्नशिप टू अंडरस्टैंड, ओके फाइन, मेरे कहाँ कहाँ पे लैक है, ओके फाइन, मेरी कम्युनिकेशन का मसला, लेट्स डू दिस इंटर्नशिप, मुझे डिजाइन का मसला है, लेट्स डू दिस इंटर्नशिप, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, that I wanted to discuss is you this is one of the first job, like proper job that you are at, ठीक है, बिल्कुल। at Dollins, ठीक है। Why don't you think, rather than going for Dollins, why don't go for a big MNC? ठीक है, because that is the main criteria, that is the main ideation of a person, ना कि एक एमएनसी में नौकरी लगनी चाहिए, मैं 6 to 9 काम करूं या 6 to 5 काम हम्म। करूं, मेरे पास ये सारी चीज हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एज अ जेनजी, आपका एज अ रीसेंट ग्रेजुएट, क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल, तो अभी तो आपको खुद भी नहीं पता होगा, तो अभी आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। बट व्हाई डू यू थिंक कि अभी डॉलिंस की जो जॉब है, ठीक है, इज इट गुड और नॉट? क्योंकि आप, मैंने आई कैन सी कि यू हैव डन इंटर्नशिप इन डॉलिंस एट वेल, ठीक है। सो आई एम प्रीटी हम्म। मच श्योर कि व्हेन यू गॉट द जॉब फ्रॉम डॉलिंस, तो यू नो द इंडस्ट्री वेरी वेल, क्योंकि यू वर इन बिल्कुल। दैट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बीइंग एज अ जेनजी, बीइंग एज अ गर्ल, व्हाट आर द राइट check boxes as a designer or as a girl who wanted to grow in the field, कि वो क्या सोचती है कि भाई ठीक है, मेरी ये जो पहली जॉब है और ये कंपनी से अगर ऑफर आई है या मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, हम्म। तो ये चीजें उसमें मैच होनी चाहिए और उसके बाद वो जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बताती हूँ। अच्छा, मेरा जो थॉट प्रोसेस, पहले तो मैं बताती हूँ एमएनसी में क्यों मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। हम्म एमएनसी में ज्वाइन करने का मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं था कि मेरे ठप्पा लग जाएगा एमएनसी का कि भाई इसने एमएनसी में काम किया है। हम्म आई पर्सनली बिलीव के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं, ठीक हम्म है, जो कि आपको रिमोट जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं, इन पर्सन जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं, विच आर ग्रोइंग हम्म एट अ वेरी बिग स्पेस। इवन स्टार्टअप्स जो स्केल अप्स भी, एंड हम्म पीपल आर इक्वली सक्सेसफुल। जो लोग स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो उनमें कोई ऐसा डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ कैलिबर और हम्म एनीथिंग। मेरा पर्सनल रीजन एमएनसी में ज्वाइन करने का ये था हम्म कि मुझे ना एक आई find the concept of strategizing a lot more fun than हम्म practical implication जो आप खुद बैठ के डिजाइन कर रहे होते हो। मैं डिजाइनर हूँ, मैं मुझे सब काम आता है, मगर मुझे डिजाइन स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता था। एंड मैंने ये जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस ये किया है कि
कॉर्पोरेट के अंदर इट्स मोर ऑन द साइड ऑफ इंफॉर्मेशन, it's more on the side of management strategizing, which is something I enjoy. ठीक है, mm, तो अगर दिस इज समथिंग आई माई रिकमेंडेशन है कि अगर कोई इंसान अपनी अगर कोई हार्ड स्किल है किसी के पास, जैसे mm, डिजाइनिंग या कोडिंग है, और वो वो नहीं करना चाहता, बट ऑन द सेम इन द सेम फील्ड वो चाहता है कि वो उसकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करे, वो उसकी mm, मैनेजमेंट करे, तो वो कॉर्पोरेट में जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये चाहता है ना कि पहले तो चेक बॉक्स होता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि मैं ये बात है एमएनसीज ऑलरेडी हैव एजेंसीज वर्किंग फॉर देम। वो हम छोटे ही स्टार्टअप्स को ही वो हायर कर रही होती है अपना काम करने के लिए, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू टेक केयर ऑफ। वो बैठ के एक एक बंदा वहाँ पे बैठ के डिजाइन नहीं कर सकता या कोड नहीं कर सकता। तो mm, अगर आपका मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन की फील्ड में जाना है, तो आप कॉर्पोरेट चूज करो। लेकिन अगर आपको हार्ड स्किल अप्लाई करनी है, लाइक आपको बैठ के कोड करना है, आपको बैठ के डिजाइन करना है, सो देन आई डोंट थिंक अ कॉर्पोरेट एमएनसी इज फॉर यू। यू शुड गो फॉर अ मोर स्टार्टअप जो कि सर्विस, जो B2B हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं दूसरे बिजनेसेस को। सास सर्विसेज, सास बिजनेसेस होते हैं, B2B बिजनेसेस होते हैं, वो आपके लिए बेहतर होंगे इसके लिए। एज अ गर्ल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि भाई उसमें कितना रूम है फॉर अ वुमेन टू ग्रो इन mm, टर्म्स ऑफ डिफरेंट फेजेस दैट कम टू हर लाइफ। ठीक mm, है, अगर लेट्स से आपके, ये बहुत फार फेच कॉन्सेप्ट है, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली थिंक ऑफ। आई ग्रेजुएट, आई देयर वुड बी अ टाइम व्हेन आई वुड गेट मैरिड, देयर वुड mm, बी अ टाइम व्हेन आई वुड हैव किड्स, राइट? तो mm, जब अगर मैं बहुत लंबी वो टाइमलाइन को सोचूं, तो पहला तो ये होता है कि भाई उसमें औरत एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्टिंग फेमिनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। मुझे mm, डॉलिंस में ये दिखा था कि there's a lot of female employees working over there. We recently got a female director over there. Facilities provide की गई हैं females को in terms of transport, in terms of safety, in terms of just nurturing a female उस corporate के अंदर। तो ये चीजें मुझे दिखी थी। I also got a job in another फर्म थी, लेकिन उस फर्म के अंदर जिस डिपार्टमेंट के लिए मुझे हायर किया जा रहा था उसमें लिटरली एक भी फीमेल नहीं थी। लाइक उस डिपार्टमेंट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी फीमेल नहीं थी। लाइक एंड जो मेरे हायरिंग मैनेजर थे उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये बोला था कि आप पहली फीमेल होंगी, ये मत समझिएगा कि ना यहाँ पे काम नहीं करती हैं फीमेल्स, हम लेकिन हम ऐड कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट फॉर मी कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात पर्सनली कि फीमेल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। mm, दूसरी चीज ये है कि अ, ये चीज तो हमें फाइट करनी पड़ती है व्हेन mm, वुमेन कम इनटू लीडरशिप रोल्स, जो mm, हाई रोल्स पे आ रही होती हैं। तो इट्स अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है टू मेक अदर पर्सन बिलीव कि जो आप बात बोल रहे हो उसमें वैल्यू है। mm, पीपल आर बिट सेप्टिकल, आई हैव सीन दिस, पीपल आर बिट सेप्टिकल एंड दे बाईपास कर देते हैं जो अगर कोई फीमेल कॉर्पोरेट के अंदर कोई बात बोल रही होती है, उसकी कोई वॉइस होती है, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी ये हो रहा होता है। बट अगर आप एक ऐसी कम आपको इसीलिए पिक एंड चूज करना पड़ता है कि जहाँ पे आप अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख सको। अभी आप एक एंट्री लेवल रोल पे आए हो, आगे जाके आप मिड पे आओगे, यू डोंट mm, नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टे, कितने टाइम के लिए आप एक कंपनी में रहोगे। तो आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए होना चाहिए। तो एक तो सेफ्टी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वॉइस ऑफ एजेंसी हो गई आपकी, फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है, ये बहुत mm, इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बताया। फिर इसके अंदर आपके पास आपके अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फीमेल्स, तो ये सब चीजें एज अ फीमेल इसमें जरूर होनी चाहिए। बाकी एमएनसी आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर नेटवर्किंग। मुझे लगता है कि एमएनसी के अंदर ना आप एक फंक्शन में सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप 4-5 फंक्शंस में एक साथ काम कर रहे होते। इट्स अबाउट क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। तो उसके अंदर ना आपको ना सिर्फ अपनी फील्ड का, अलग अलग फील्ड्स का सीखने को मिल जाता है। तो You're जब one आप of एक the बार you're one of the Gen Zs that I talk to, and they are very good and they're very happy with the MNC environment because Gen Zs are more relevant towards कि नहीं भाई हमें ये चीज करनी है और हम we wanted to start with degree, but I really wanted to congratulate क्योंकि आपके जो भी decision making है माशाल्लाह it's very thought out कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि I'll make my mind कि ऐसा ही है, ठीक है, या मैं इस चीज को मान लूं कि लोग कह रहे हैं तो ये वैसा है, ठीक है। एंड the main reason of asking this is कि how
what's your age? You are Gen Z, right? Proper. Yes, I'm Gen Z. I'm Okay, ठीक complete है. Gen Z. You're proper Gen Z, ठीक है. Because why I ask this, because whenever I talk or whenever I see or whenever I'm going through profiles, I see that Gen Zs are more relevant towards doing something on their own. Either they are doing freelancing, either they are wanted to work in the agency. That is the stereotype that I wanted to break, because ना वो गलत है ना आप लोग गलत हो. ठीक है. बिल्कुल. Is to understand कि okay fine, this is my mindset, these are the things that I want for my life. और ठीक है, वो मेरा एमएनसी में पूरा हो रहा है, तो I'll stick with MNCs. ठीक है. एजेंसी में पूरा हो रहा है, एजेंसी में स्टिक रहूंगी, स्टार्टअप में पूरा हो रहा है, स्टार्टअप में स्टिक रहूंगी. और ऐसा नहीं है कि सबके कोई नुकसानात नहीं है. एवरीथिंग कम अप विद देयर प्रोस एंड The कॉन्स. ठीक pros है. and cons, बट definitely. आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ कि यू डोंट जस्ट डूइंग. क्योंकि लोग कहते हैं जेनजी गलत है, अगर लोग कहते हैं जेनजी गलत है, तो यू एंड पीपल लाइक यू आर द एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर ऑल्सो जेनजी एंड you do have a mindset. And now in 2025, it's not about Gen Z's being just a student. They are getting out of degrees, they are getting jobs, and they know बिल्कुल. they do have the understanding of the market किस तरीके से grow करेगी. The main idea of me reaching out to you people, क्योंकि if one generation is saying one thing about a second generation, ठीक है, तो उसका बिल्कुल. आसान हल ये है कि उस जनरेशन को कॉल करो और उनसे पूछो कि भाई क्या ये रियलिटी है या अभी नहीं. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आके कहता है आपके मार्केट में जॉब्स नहीं है और बहुत ही वियर्ड थॉट प्रोसेस है उनका, वो पॉजिटिव सोच नहीं रहे, तो फिर मैं उनको कहूंगा कि देयर आर पीपल लाइक यू, देयर आर पीपल लाइक हरीम, जो कि उस पॉजिटिवनेस को देख रहे होते हैं. क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट नॉट every time your degree give you everything, not every time your personality give you everything, not every time your job needs to give you everything. And बिल्कुल. I personally believe, throughout the experience, I personally believe कि हर बंदे का टाइम उसकी टाइम लाइन के अंदर अलग अलग टाइम पर आता है. सही है. बिल्कुल किसी सही बात है. कोई कोई इंसान चीजें वक्त से पहले हासिल कर लेता है, कुछ को 5-6 साल बाद वो सही क्या बात कहते हैं मौका मिलता है, और कुछ को उसके बाद मिलता है. बट इट्स अ गुड थिंग. सही है. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस एंड वांटेड टू हैव योर आइडिया ऑन इट, के बीइंग एज अ जेन जी, the one and the है. most important issue that people usually say कि यार मिलीनियल्स का वर्क एथिक्स बहुत अलग है. ठीक है. और जेंजीज का बिल्कुल. वर्क एथिक्स बहुत अलग है. ठीक है. मेरा थॉट प्रोसेस इस पे थोड़ा सा अलग है. आई डोंट जज और आई डोंट से कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग. इट्स टू अंडरस्टैंड कि किस क्राइटेरिया में आप खड़े हुए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यस, अगर मुझे आज कोई जेंजी का ट्रेंड फॉलो करना है, तो आई रिस्पेक्ट अ जेंजी और मैं कहूँगा कि आप मुझे गाइड करें. बट इसी तरीके से मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर जेंजी को कोई रिसर्च देखनी है और कोई मिलीनियल उसको ये कहता है कि यार ये काम नहीं करेगा, तो दैट फॉर श्योर कि क्या पता उसने वो चीज़ करके देखी हुई है बहुत सालों से. तो एक्सपीरियंस इज अ वेरी डिफरेंट डिबेट, और गेटिंग आउट ऑफ योर बॉक्स एंड डूइंग समथिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है. आई एम अज्यूमिंग कि आपके ऑलमोस्ट जितने भी सीनियर्स होंगे वो सारे या तो मिलीनियल्स होंगे या मिलीनियल से बड़े होंगे. आपको क्या लगता है, being a Gen Z, what are the important pros and cons people usually have to face when they are working for someone जिनका thought process बहुत अलग है. ठीक है. क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, जब आप एमएनसी में काम करो, आप स्टार्टअप में काम करो, लेकिन अगर आपकी फाइनल ऑडियंस पाकिस्तान में है ना, तो आप उस तरीके से सोचते हो. ठीक है. बिल्कुल. आई एम अज्यूमिंग कि कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो जाए, कभी भी डॉलेंस एंजेलिना जोली को नहीं लेगा, क्योंकि वो कनेक्टेबिलिटी मैच ही नहीं होती. ठीक है. और दूसरा ये होता है कि एज अ सेलर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट एज अ बायर, बायर को नॉलेज देना बहुत अलग होता है, और पाकिस्तान का बायर बहुत अलग है. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स लाइक, अगर मैं डॉलर्स की बात करूं कि जो ऐसा प्रोडक्ट है जो बंदा रिलायबिलिटी पे ले रहा है, ठीक है, इन चीज़ों पे ले रहा है, तो क्योंकि डॉलेंस का नाम आज से नहीं है, जेनजीज ने आके डॉलेंस का नाम नहीं बनाया. दीज बिल्कुल. मिलीनियल्स बिल्कुल. दीज मिलीनियल्स वर देयर फॉर लाइक 15-20 और हम्म. मोर देन 20 years. ठीक है. तो आई एम प्रीटी मच श्योर उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. तो व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस के बीइंग एज अ जेंजी मिलीनियल से क्या इनटेक लेना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए. क्योंकि जब आप नए होते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके पास 2-3 मसले होते हैं. एक तो आपको ये पता नहीं होता कि मुझे कितना सीखना है.
और किससे सीखना है। दूसरा, आपको ये पता नहीं होता कि वेयर आई नीड टू से नो, ठीक है, कि क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना कैरियर, तो आप बहुत एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड होते हो, और आप हर किसी को कहते हो ठीक है मैं ये बिल्कुल। भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। बट हम्म। देन यू नीड टू रियलाइज कि योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग, your way of doing thing changes when you are in early 20s. I'm pretty much sure जब आप यूनिवर्सिटी में गई होंगी तब आप बहुत एक्साइटेड होंगी। अब आप मार्केट को थोड़ा समझने लग गए होंगे, अगले 5 साल बाद आप अलग तरीके से होंगे, उसके 5 साल बाद अलग तरीके से होंगी। तो ऐसे क्या 3-4 पॉइंट्स आप बताते हो कि जो लोगों को या जेनजीज को फॉलो करना चाहिए, जो उनको लॉन्गर टर्म के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं बीइंग वर्किंग विद मिलेनियल्स। ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, देखिए पहली तो चीज़ मुझे मैं जो आपने बात बोली थी कि डॉलेंस को जेन ज़ी ने मशहूर नहीं किया, 100% डॉलेंस को उस डॉलेंस की जो एक लेगेसी क्रिएट हुई थी है, वो उसके प्रायर जो जहाँ पे लोग काम करते थे नॉट उन लोगों नॉट ने की है। एंड नॉट ओनली जेंजी, ठीक है, मतलब सॉरी, नॉट ओनली डॉलेंस, ठीक है, आई पर्सनली बिलीव के और भी ब्रांड है, हाँ, तो मतलब उनकी लेगेसीज़ पहले हाँ, से देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा जी, कि वो ब्रांड उस तरीके से अपने आप को स्विच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पहले उनका बाइंग बिहेवियर, जो खरीदने वाले लोग थे वो हम थे, ठीक है, अब आने वाले टाइम में खरीदने वाले लोग आ पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए यस वी डू हैव कॉन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर इज अ गुड, दे आर गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन नेशनल फूड्स, एंड दैट इज व्हाई मैं जब उनसे बात करी उन्होंने बोला कि यार अब आप देखोगे ना तो बहुत सारे ब्रांड अपने एक्स वाई जी चीजें निकाल रहे हैं जो जेनजी स्पेसिफिक हैं, सॉसेज हो गए, कोई ब्रांड कुछ निकाल रहा है, कोई ब्रांड कुछ निकाल रहा है, ठीक है, मी स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग द पार्ट इज टू अंडरस्टैंड कि ना जेनजी को ये सिखाया जाए। आई थिंक जेनजीज को मसला भी नहीं है, मिलीनियल्स को मसला नहीं है, दे आर द थर्ड पीपल जो ये चीज डिबेट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, हुँ, बिकॉज अगर मैं ये कहता हूँ कि जेनजीज को ये बताया जाए कि यार आप अपने आप को इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करो कि आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखो ना, जो उन्होंने 25 साल में सीखा है, आप 1 साल बैठ के उनके साथ सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस तो 26 साल का होगा, क्योंकि आप वो चीज सीख चुके 1 साल में, और फिर आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल। भी उसमें अंदर पुल ऑन करोगे। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होती है कि जेनजीज आर वेरी रेबेलियस, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं यार, इधर दिस और नॉट दैट, ठीक है, दैट इज वाई आई एम आस्किंग कि आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं मिलीनियल्स के जो अच्छे हैं, क्या ट्रेड ऑफ होते हैं जो मिलीनियल्स के जिन पे जी। डाउट हो सकता है। जी। अच्छा देखिए, जेन ज़ी की जो सबसे अच्छी बात जो जो मैंने आपको बताई भी थी, वो ये है कि जेन ज़ी नो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास, ठीक है? मतलब इतनी कि शायद क्योंकि हम बड़े ही एक ऐसे ज़माने से हुए हैं जहाँ पे हमें एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा। फिर सोशल मीडिया आ गया, वहाँ पे हर चीज़ एल्गोरिथम आपको बार-बार वो चीज़ फीड कर रहा होता है। तो हमें बहुत कुछ पता है। इसी वजह से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि खुद से ही ना एक समझे एक जनरेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी के अंदर होने वाले राइट्स एंड रॉन्ग्स की हो जाती है। लाइक अब मैं ये नहीं कह रही कि राइट और रॉन्ग कोई बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, हर किसी के लिए एक बहुत ही ग्रे एरिया होता है, जो हमारे लिए सही होता है वो सामने वाले के लिए गलत गलत होता है। लेकिन एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि अपने राइट्स को पहचानना। लाइक आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो आप उसको पहचान लेते हो। जो मैंने बात बोली थी कि हमसे पहली जनरेशन जो जितना मैंने देखा है अपने अपने आस पास एक्सपीरियंस में, उनको ये रियलाइजेशन बहुत लेट होती थी कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है। हमें तो शुरू में हो जाता था, लेकिन अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि हम डिस्कम्फर्ट और इनजस्टिस को मिक्स कर देते हैं। हमें थोड़ी सी चीज अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, हमें हमें फेस करने पड़ते हैं उन चीजों को जो शायद हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा टास्क मिल जाता है एट एंट्री लेवल रोल, जो आप कहते हो कि भाई ये तो मुझे इसके लिए तो हायर किया ही नहीं गया था। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर टास्क इतना बड़ा नहीं है एंड छोटी सी चीज है, उसकी कंट्रीब्यूशन से ना आपके टाइम पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस जो आपके किसी हायर अप ने अगर आपको कोई टास्क दिया है और आपको वो करना पड़ रहा है, उनको उनकी चीज डिलीवर हो जाएगी। कम बीइंग एन एम्प्लॉय कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अगर आप अभी झगड़ा करने बैठ जाओ अपने मैनेजर से कि भाई मुझे तो ये करना ही नहीं है, ये तो मुझे करने को बोला ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। आपकी जेडी एक सर्टन एक ओवर आर्चिंग डिस्क्रिप्शन होती है, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट
that are not written, but they are there in between the lines. If you feel like you are being treated very unfairly, you are given tasks that are completely out of the your job that you are hired for, then negotiate, communicate, ask the people who have who are your line managers जो आपके ऊपर होते हैं कि उनसे बात करो कि ये ये एक इशू आ रहा है, इसके ऊपर हम बात कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द मिडिल ग्राउंड वी कैन फॉरवर्ड, मे बी यू हैव अ बेटर टाइटल फॉर इट, बेटर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर इट। लेकिन छोटी छोटी चीजों को जो डिस्कम्फर्ट आ जाता है उसको हम इनजस्टिस समझ के बैठ जाते हैं। इवन ऑन यूनिवर्सिटी लेवल लोग समझते हैं कि हबीब बहुत एक सेफ स्पेस था, सही है, जहाँ पे जिसको नाम नहीं दिया जाता है कि भाई वहाँ पे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, बहुत डाइवर्स है, बट एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट प्रोज एंड कॉन्स। हबीब की कुछ सर्टन पॉलिसीज हैं दैट यू नीड टू फॉलो, उस पे भी देयर वर कंप्लेंट्स, उस पे भी देयर वर रिस्ट्रिक्शंस कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। यू कैन नॉट गो अराउंड एंड just be against everything and anything that happens. कुछ चीजें you have to let them be, accept them and find a way around them. तो हर चीज injustice नहीं होती है, कुछ चीजें सिर्फ अनकंफर्टेबल होती हैं, आप खुद उस सिचुएशन से निकल सकते हो। हर चीज को इनजस्टिस का नाम देकर उस पर एक्सट्रीम एक्शंस ले लेना, अचानक से 2 महीने आपने जॉब की, मैंने बहुत लोगों को देखा है इंस्टेंटली ज्वाइन करते हैं ऑफिस को एंड 2 महीने के अंदर वो जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल है। यस, आई कंप्लीटली एग्री, ग्रेजुएट होने के बाद आपकी फर्स्ट जॉब बहुत ओवरवेलमिंग होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर यू हैव टाइम टू टेक ऑफ, आप अपने स्केड्यूल से आ सकते हो, जा सकते हो। यहाँ पे 9 to 5 स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं। इवन इफ योर जॉब इज नॉट स्ट्रेसिंग, द कंप्लीट द स्पेसिफिक सेंस ऑफ बीइंग bound by time, your time being controlled by an organization, But by someone else. that is why they are paying you. ठीक है, this I like the idea of you are saying that, but मुझे ऐसा लगता है कि इसका बड़ा आसान सा हल होता है कि अगर आप being as a Gen Z या being as a millennial किसी Gen Z को ये सिखाया जाए, अगर आपके टीम लीड्स या आपके मैनेजर आपको ये सिखाएं how to become flexible, ठीक है, जी बिल्कुल। and it's not about taking the roles or taking the jobs that are not in your JD. It's to use them at a very right point कि okay fine, एयरली एंड के जब आप एयर एंड रिव्यू पर आए, ठीक है, तो आप ये बता सकें कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन इस चीज के अंदर भी है, बिल्कुल। ठीक है, मेरा एग्जैक्टली। कंट्रीब्यूशन इस चीज के अंदर भी है, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, पीपल who thinks के it's going to be very easy, ठीक है, एवरीथिंग इज हार्ड, ठीक है, बेशक आप डिग्री उस चीज में करें जिस चीज में आप नौकरी कर रहे हैं, बेशक आप वो चीज करें जिसमें आपने डिग्री नहीं भी करी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टू ग्रो फॉर योर सेल्फ दैट 9 to 5 इज सपोज टू बी, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है, आप 9 से 5 आके काम करेंगे जिसके आपको पैसे मिलेंगे, जी ठीक है। यू बिल्कुल। नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बॉक्स के अंदर उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है जिसके बिहाफ पे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर एक नेगेटिव स्पेस जरूर होती है जिसमें आप थोड़ी सा और काम ले सकते हैं, ठीक है, एंड वी नीड टू रियलाइज कि वो बॉक्स जब फटने वाला हो तब आप उस पॉइंट पर आए। देर इज नो नीड टू रेंट इट आउट एवरीथिंग, ठीक है, और बिल्कुल। देर इज नो नीड टू रेंट आउट एवरीथिंग थ्रू आउट योर ओवरऑल 10, 15, 20 प्लस ऑफ एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अगर अभी याद करूँ तो मुझे याद भी नहीं कि मेरी पहली जॉब पे क्या चीजें ऐसी हुई थी, ठीक है, एंड नॉट एवरीथिंग और नॉट, मतलब हर चीज को मेंशन करने वाली जरूरी भी नहीं है। इफ दैट थिंग डोंट बॉदर यू आफ्टर 5 years, देयर इज नो नीड टू मेंशन इट, ठीक है। बिल्कुल सो सही बात है। बी व्हाट आई पर्सनली थिंक, the main topic or the main idea that I usually tell to all people who came to me and asked them कि यार this is something that we don't know how to tackle it, is to be a bit flexible, know बिल्कुल। how to use things for your positive approach. For example, if someone comes to you and say कि यार ये वाला काम भी आप कर दें, ठीक है, then you need to realize कि बहुत सारी चीजें एजेंसी लाइफ में या जिंदगी में भी आपको लोगों के लिए इसलिए करनी पड़ती है ताकि जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो वो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आप जा कर, सके, बिल्कुल। ठीक है, जी। नंबर वन। नंबर सेकंड, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इज अ नेट प्रैक्टिस, ठीक है, हम्म। उसमें आपको पता है कि मैं मशीन में बॉल डालूंगा और हर बॉल इतने ही किलोमीटर की स्पीड से आती रहेगी,
जी। उसको मैं कहता हूँ असाइनमेंट्स, कि आपको पता है आप मंडे को जाएंगे, टीचर असाइनमेंट देगा, अगले मंडे को चेक करेगा, अगले हम्म, मंडे को नहीं तो मुझे पता है जब तक मैं फाइनल नहीं दे सकता। और उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप पेपर नहीं देंगे आप फेल हो जाएंगे। सेम रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन टू और ऑन टू अ नॉर्मल जॉब। You do good, you get increments. You don't do good, you don't get increments. You do worse, बिल्कुल you सही get बात। out of the office. ठीक है। We need to understand कि वो जो बबल है ना, अगर आपको वो एजुकेशन या वो एक्सपीरियंस पहले ही दे दिया जाए, ठीक है, जस्ट टू हैव एन आइडिया, कि आई पर्सनली बिलीव कि yes, I agree कि universities are not responsible for everything because they are not signing an NDA. That's the same thing applicable for the offices as well, क्योंकि वो जब वो ऑफिस दे रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हमने एनडीए साइन कर लिया, आप जब तक जिंदा रहेंगे हम आपको नौकरी पर रखेंगे। ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। आप हमें पैसे दें, हम बिल्कुल। आपको पढ़ाएंगे, 4 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। जॉब, हम्म, आप हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको जो है पैसे देंगे। जब हम आपको निकालना होगा हम आपको निकाल देंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। ठीक है। सही बात है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। द इट्स लास्ट अ थिंग, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली। मैं लाइफ इज अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, एवरीथिंग इज अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप। बिल्कुल। ठीक है, फॉर आप एग्जाम्पल, कुछ करते हो, आपको उसके पैसे हाँ मिलते हैं, या आप पैसे दे तब कुछ मिलता है। इट्स मत, नॉट पर्सनल, वी नीड टू कीप क्रिएट दिस बाउंड्री। तभी जाके हम अपने डिसीजंस को न्यूट्रली देख सकते हैं कि भाई हमें उस रोल में क्या करना है और पर्सनली हमें क्या करना चाहिए। हम मिक्स कर लेते हैं। इट्स लाइक अ टीम एफर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल। आपको पता है कि आपको दिन में 10 काम करने हैं। ठीक है, और आपको पता हम्म, है यू हैव अ रूम टू डू दैट। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इशू होता है कि when people came to me and they were like, यार we don't know how to grow, then I have a very good point. 9 to 5 is not for your growth, to be very सही honest। बात है। ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग एट योर 9 to 5, यू आर गेटिंग पेड ऑफ फॉर दैट। इफ यू वांटेड टू ग्रो देन यू नीड टू वर्क फॉर आफ्टर 5 to 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, फाइव नौ टू से नाइन काम करना। नौ से पांच करने की, 9 से 5 ग्रो करने के लिए नहीं होता, क्योंकि 9 से 5 आप उसका काम करेंगे, वो आपको पैसे देगा। अगर आपको ग्रो करना है बिल्कुल। तो आपको 5 बजे के बाद काम करना पड़ेगा, नंबर वन। जी नंबर बिल्कुल। सेकंड, कि देर इज देन वी नीड टू अंडरस्टैंड, लोग इसको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, बट यू नीड टू रियलाइज व्हाट यू पिक। ठीक है, अगर सही किसी बात। को इस पॉलिटिक्स में रहकर, इस एनवायरमेंट में रहकर वो समझ चुका है कि इसमें ग्रो कैसे करना है, तो उसके लिए तो वो भी अच्छा है। अब ये आपके एग्जैक्टली। ऊपर है कि ईदर यू नीड टू टेक दैट अप्रोच और ईदर यू डोंट नीड टू टेक दैट अप्रोच। ठीक है, दिस इज वेयर आई नीड टू से कि सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है। ठीक है, देखें, आप 50,000 कमाती हैं, हो सकता है आपके लिए वो बहुत अच्छा हो, कोई 1 लाख कमाता है उसके लिए वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, एंड सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स और जॉब और अप्रिसिएशन और जॉब और डिग्री या मुझे प्रमोशन क्या मिल रही है। सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग है। ठीक है, सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ विद ईच एंड एवरी थिंग, क्योंकि अगर आप अभी भी अपने ग्रेजुएट दोस्तों को कॉल करेंगी, नॉट ऑल ऑफ द 40-50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ना सारे के सारे एक पे वेज पर होंगे, ना एक सारे के सारे कंपनी में होंगे, ना सारे के सारे। दैट सही बात डिपेंड्स। है। ठीक है, तो हाउ यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, सम टाइम पीपल से कि यार कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह पे। पॉलिटिक्स एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में भी होती है। अगर आप 3 दोस्त हैं तो बिल्कुल। आपको हर चीज, इंसान की हर चीज अच्छी नहीं लगती, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि आप अपना अलायंस बनाएंगे कैसे। ठीक है, सो फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, अगर आप आज डॉलन्स में हैं, ठीक है, आप किसी रिसर्च के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, तो अगर आप खुद इतना स्टेप लेती जाएंगी तो यू विल बी हाईलाइटेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात। मुझे मुझे इससे कोई मसला नहीं होता। आई बिलीव इन दैट पॉइंट कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। अगर आपको लगता है कि लड़की लड़की 80 लड़की मतलब 80% लड़कियों से आपका ऑफिस चल सकता है, आप 80 नहीं, आप 100% रखो। देर इज नो सच थिंग लाइक 50% लड़कियां 50% लड़के होने चाहिए। हम्म, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज, बीइंग एज अ जेनजी, आई पर्सनली बिलीव कि your generation are more on platform where they're wasting their time rather than making their own professional profiles। ठीक है, एंड इट्स लिसन आउट टू मी, मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या नहीं मैच चिट चैट पे करता। रहना, चिट स्नैपचैट पे रहना जो है वो बुरी चीज है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका वो राइट बनता है कि आपका आपका ब्रेड अर्निंग का रिसोर्स ही वही है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे रहें। बिल्कुल। then you need to realize
कि नॉट एवरीवन इज अ कंटेंट क्रिएटर, बट एवरीवन नीड्स टू नो अ पर्सनल ब्रांड। लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हरीम अब्दुल्ला रऊफ ये हैं, उनसे किसी कंपनी का नाम डायरेक्ट ना हो, क्योंकि कंपनीज आर ओनली देयर फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बट देन बिल्कुल। यू नीड टू रियलाइज उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसमें नेटवर्किंग इन्वॉल्व है, कि आप किस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। डू यू थिंक योर पर्सनल ब्रांड इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ? उस पर मेहनत करनी चाहिए। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे कि यार किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं कि हरीम अब्दुल्ला रऊफ अब्दुल रऊफ की ये ये पिक्चर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आज वो डॉलर्स के साथ काम कर रही हैं, वो किसी भी इंसान के साथ काम करें, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि जब आप नए नए इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं ना, तो लोग अपनी कंपनीज में ज्यादा रंग जाते हैं। बट आपको ये चीज समझनी चाहिए, अ जॉब इज अ जॉब, इट्स अ 9 to 5। उसके बाद भी आपकी जिंदगी है, तो आपको अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल या प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। व्हाट्स योर से ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एंड हाउ टू डू इट? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स? दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। जी, देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग आई फील लाइक इज 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात पे मेरे हिसाब से कोई इख्तिलाफ हो नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक स्टार्टअप में काम करो, आप एमएनसी में काम करो, कहीं भी आप काम करो, ठीक है। आप वहाँ पे जो काम कर रहे होते हो ना, वो आपका 9 to 5 जॉब के लिए पेड है। इवन इफ यू से अच्छा मैंने ये काम किया है, यू कैन नॉट शेयर दोज डिटेल्स वेरी क्रिटिकली इन एनी अदर प्लेस, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, हर जगह की होती है। तो उसलिए आप जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम की विजिबिलिटी आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक ही है, वो भी तब जब आप खुद अपने लिए ताली बजाओ। अगर आप खुद जाके बोल रहे हो, आप माय फादर सेज वन थिंग कि एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से ताली बजाओ। सो इट्स नॉट कि आप मुंह पे जाके ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यू जस्ट गो एंड से कि भाई ओ आई एम सो गुड एंड आई एम डूइंग दिस एंड दैट। देयर आर स्ट्रेटेजिक वेज टू लेट पीपल नो द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। आप ईमेल्स, सबसे पहले तो अगर आप कॉर्पोरेट में या स्टार्टअप में भी काम कर रहे हो, तो वट एवर यू आर डूइंग, यू गेट अ मीटिंग, यू शेयर, write and document it, like documentation via email, and just having something ready for an elevator pitch. आप ऑफिस में उतरते जाते हैं, डायरेक्टर्स आपके साथ हो रहे होते हैं, सीईओ उतर रहा होता है, तो आप उनसे खुद कॉन्वर्जेशन क्रिएट करो, 1 मिनट की कोई ना कोई बात करो, रीसेंट प्रोजेक्ट बता दो कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम लीडिंग दिस प्रोजेक्ट। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने का ये तरीका होता है। आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2-3 चीजें आई वुड रेकमेंड। सबसे पहली चीज तो बहुत क्लीशे है, आई पर्सनली एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बट मेरे हिसाब से लिंक्डइन इज राइट नाउ, लिंक्डइन पे अब आप उसका एल्गोरिथम भी देखिए, बहुत चेंज हो चुका है। क्रम्बल सादा पे की वजह से बहुत ही फंकी सा एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो, इसमें लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो इवन इफ इट्स जस्ट वन कमेंट, वन लाइक, जस्ट इंटरैक्ट। लिंक्डइन का एल्गोरिथम इस तरीके का है कि वो प्रमोट कर रहा होता है आपके ही ऑनलाइन, आपके ही उसमें फीड के ऊपर कि समवन लाइक, मुझे नोटिफिकेशन आ रही होती है, दिस पर्सन कमेंटेड दिस, योर फ्रेंड, योर कनेक्शन डिड दिस। मैं तो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रेजेंस क्रिएट करें, कीप इट वेरी एक्टिव, कीप इट वेरी ओपन, कंटिन्यूसली टेल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, कि क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है। दूसरा पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने का तरीका मेरे हिसाब से ये है कि टू टू बी इन टच विद पीपल जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। वो आपके वायर प्रोफेसर्स हो सकते हैं, आपके लिंक्डइन कनेक्शंस हो सकते हैं, या आप डिफरेंट डिफरेंट कराची में तो बहुत सारी समझे इवेंट्स हो रहे होते हैं। कभी कोई टेड टॉक हो रही होती है, फ्रेंड्स ऑफ फिग्मा हुआ था 10 फर्स्ट में एनएसटीपी के अंदर। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के सीईओज आए थे। these are the kind of events that you should go to, tell people the kind of work that you are doing, बहुत practical चीजें, these are something that I personally do। और उसके अलावा आप अगर डिज़ाइन या आर्ट के अंदर हैं, तो अपना एक पोर्टफोलियो ज़रूर क्रिएट रखें, क्योंकि इंस्टेंटली आप किसी को भी दे सकते हैं। अब पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हो ना, वो आप ही को पता होता है। यू नीड टू लेट पीपल नो दैट यू एग्जिस्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक रूल होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, इवन इफ आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता या बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, यू जस्ट keep putting something a little by little on the social media या मीडिया के ऊपर कि yes we exist का एक टर्म होता है। तो आपने लोगों को बताना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इंसान भूल जाता है, देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग फॉरवर्ड, रोज कोई ना कोई आ रहा होता है।
आपको अपनी यूनिक प्रेजेंस क्रिएट करनी होती है, उसके लिए आपको अपना एक यूवीपी क्रिएट करना होता है। हर इंसान जाके हर चीज़ नहीं कर सकता, आपको पहले तो अपनी, देखिए अपनी डिग्री में तो हर कोई कुछ ना कुछ करा होता है, वही बात डिजाइनर्स भी आपको 50,000 मिल जाएंगे। व्हाट इज यूनिक अबाउट यू इन टुडेज वर्ल्ड, इट्स द वैल्यूज दैट यू पुट फॉरवर्ड। आप हम्म। किन कॉन्वर्जेशंस के ऊपर बात करते हो, किन चीज़ों के बारे में एडवोकेट करते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। फॉर मी पर्सनली, आई एम राइट दीज डेज टू मच इनटू एनिमल वेलफेयर। हम्म। एनिमल्स के लिए जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉलो देम अलॉट, आई टॉक अबाउट देम, ठीक है, पर्सनल नेटवर्क में भी। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू क्रिएट प्रेजेंट योर सेल्फ मोर देन जस्ट द वर्क दैट यू आर डूइंग, एज समवन हु बिलीव्स इन सर्टेन एथिक्स एंड वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि आप जो हर कोई जिन चीज़ों के लिए एडवोकेट करे आप उसी के लिए करो, मगर कोई एक ऐसी इम्पैक्ट होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये इंसान यहाँ पे सिर्फ अपने काम करने के लिए नहीं आया, एक कलेक्टिव वेलबींग के लिए आया। सो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत डिफरेंट तरीके टूल्स एंड चीज़ें मौजूद हैं। आप नेट लोगों के साथ बात करें, आप लिंक्डइन पे रहें, आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें। कोल्ड ईमेल, कोल्ड कॉल्स बहुत डॉन्टिंग लगता है, मगर लिंक्डइन पे एक मैसेज भेजने के लिए किसी को भी कुछ नहीं जा रहा होता, वो रिप्लाई करते हैं आपका, आपके एक एडिशनल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो इसी से आप आगे जाके जॉब लेते हैं, वरना जॉब मार्केट इस वक्त फ्रीज हुई है बिल्कुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट टू स्केयर एनीवन, बट I have seen this job market is literally लोग आर people are not hiring। एक ग्लोबल रिसेशन के अंदर पूरी दुनिया है, और ज्यादातर जॉब जो लोगों को जो मिल रही है वो उनके नेटवर्क से ही मिल रही हैं, ये रेफरल्स होते हैं उनके थ्रू मिल रही होती है। लिंक्डइन के ऊपर जॉब लिस्टिंग आ रही होती है, बट द काइंड ऑफ जॉब यू वांट, इट्स मोर अबाउट द प्लेस यू वांट टू वर्क एट रादर देन द रोल यू वांट टू वर्क एट। Fair enough. I think your point is very good. Just need to add few things. Is number one के be a salesman. ठीक है. बिल्कुल I see personal branding as a salesman. You need to understand how to sell, and every salesman has their own strategies when it comes to you कि वो किस इलाके में सेल करेगा, कैसे सेल करेगा, क्या वो मैसेज बिल्कुल पे सेल करेगा, क्या वो कॉल पे सेल करेगा। सो इट्स ओनली डिपेंड अपॉन हाउ यू सेल। ठीक है, और सेल का सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जितना आप सेल करते हो आप उतना सीखते हो। तो दिस इज हाउ पर्सनल ब्रांडिंग फॉर मी, नंबर वन। नंबर सेकेंड, industry and job market is always like this. It's not in 2025, 2020 की बात भी नहीं है, जब से लोग काम कर रहे हैं तब से लेके आज तक। ठीक है, इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है। सही है। या तो आपके पास कोई चीज अच्छी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री को शाइन आउट करे, या बिल्कुल तो आपका वक्त अच्छा होना चाहिए। ठीक है, या तो उस कंपनी में लोग आपको जानने चाहिए, क्योंकि जाकिर खान सेट के जरूरी नहीं है कि आपको काम कैसा आता है, बंदा 20% मतलब बंदा जो है 100% होना चाहिए, काम 80-90% भी चल जाता है। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि एट द सेम टाइम आप अपने केपीआईज को किसी और पे पुट ऑन करते हैं। दैट्स द सेम थिंग। अगर फॉर एग्जांपल कल डॉलर्स में ओपनिंग आती है तो आप ये प्रेफर करेंगे कि जिनको आप जानते हैं आप उनको रेफर करें, ताकि आप जी उनके लिए वाउच कर सकें, और वो आपको पता है कि वो आपके हिसाब से ही काम करेंगे। तो इस तरीके से काम करती है। मैं कहीं पे भी ये नहीं कहता कि जॉब अच्छी है या बुरी है। ठीक है, इट्स नीड यू नीड टू अंडरस्टैंड either you are capable और either you know that the opening is still open। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो कैपेबिलिटी कुछ नहीं कर सकती आपकी, बेशक आप कितने भी सही बात। टैलेंटेड हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जॉब ओपनिंग कहाँ पर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि जॉब ओपनिंग कहाँ पर है लेकिन आप केपेबल नहीं है तो आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो इट गोज बोथ वेज। बट येस, वट एवर पॉइंटर्स दैट you have shared is very good. Thank you so much, Hareem. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. I'm थैंक यू really सो happy. मच। I'm really happy that I connected with you, and understanding the idea a 25-year-old girl have a thought process like this. I'm happy that the generation is going very well, because every generation we do have pros and cons, and yes, we do have people like you, and we do have people like other as well. So thank you so much. Thank you so much, Hareem. थैंक Thank यू। you so much for time. It's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you wanted to reach out to Hareem, you can reach out to her on LinkedIn, write a proper message. I'm assuming मैंने proper message करा था तो उन्होंने मुझे reply करा, तो वो आपको भी reply करेंगी। But thank you so much, Hareem. Thank you so much for your time. थैंक यू।